Very good evening to all of you. My dearest students, teachers, and our most revered parents. I heartily welcome you all to this platform, this webinar. Today, you are standing on a threshold of your life, and a very important decision has to be made, which will affect your life throughout. And you have to make the right choice. You cannot, if you're making a wrong decision, it can lead to a lot of stress and problems in the future. So the decision of stream selection or selecting your subjects that you're going to study in your academics, or for that matter, any decision in your life, it should be driven by your passion. And along with the passion, you have to keep in mind that whether you have the aptitude for doing that and following your passion. Aptitude is also a very important factor which can be done. If you have a passion for something, you will achieve it, but you need to have an aptitude also. Our lead speaker is a renowned educationist and is an experience in this education field for over 3 decades now. She has counseled many students, and not just regarding the stream selection, career selection, but regarding life. I call her the life coach. She is also an eminent resource person for CBSE. For the various seminars and the webinars, currently CBSE is also conducting various webinars, and ma'am is a resource person who is used very regularly for training the teachers. And I'm thankful to ma'am that she has found today time to share her experience and expertise with the students today. And of course, now I have to call our honored principal ma'am, Dr. Savita Arora ma'am. And I think she needs no introduction more than this from us. Very good evening to you, ma'am. And if you could just come and take the platform and take over. I'm sure parents are willing to meet you and waiting. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. You're audible. Okay. So, very good evening to all of you. Today is the time when we are logged in our own homes. But our sweet home, which is inside us, is always creating a hustle bustle in our heart and tries to come out with new and creative things. So, I would first of all appreciate that you have taken down your patience to such level that you are a true human being. You are becoming a true human being nowadays because there is a family bonding. And I feel that the family bonding is always been craved of everyone. सभी लोग इसकी इच्छा कर रहे थे कि कब छुट्टियां हों और कब हम एक साथ बैठें. हमें क्वालिटी टाइम बिताने का टाइम नहीं मिलता. आई नो आई एम टॉकिंग टू द एडल्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो. शायद एडल्ट स्टूडेंट सोचते हैं कि लॉकडाउन उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है बिकॉज ऑल द टाइम पेरेंट्स आर ऑन देयर हेड. शायद उनको इतनी आदत नहीं है पेरेंट्स को अपने सिर पर रखने की हर वक्त. पर माय डियर स्टूडेंट्स, I think you are privileged ones to have this quality time where every parent is taking care of you holistically. He is wishing to get into your emotional warfares also and trying to have a bond, a friendship with you in these days. So I must appreciate that bond. I know I'm talking to the youth of tomorrow. So let me start the day. I'm no one to tell you what to choose. We can only guide. Others can only guide. And
I know that you are understanding me, but your parents are also there. So I would like to reach them also. In that case, I would beg pardon that I'm going to be bilingual at times where I feel that I have reached parents also. Parents are wishing me good evening. Good evening is already been taken. And you also please carry on with me and have a nice evening ahead. So children, for this particular reason for which we are here is to washen up, to create some kind of clarity and wash out all the doubts which we have, getting our future made by ourselves. See, doubts and faiths, both are the situation of the mind. Doubts create the darkest moments in our finest time. And the faith brings what faith brings out. Faith brings the finest moment in the darkest time, which we already have justified that the time is very hard, but still we are staying, we are living with faith. We all have a doubt. What is going to happen tomorrow? What is the future of education? What is the future of other things too? Economically also, we are facing a lot of trauma nowadays, and those doubts are haunting us. So dear children, you are the powerful souls who can turn over the doubts into faith, because that untapped energy is there with you. इतनी एनर्जी आपके अंदर है कि आप हर डाउट को फेथ में बदल सकते हो. सो आज की डिस्कशन और फेथ के डिफरेंस की है कि हम किस तरह एक डाउट को फेथ में बदलते हैं. आपके पास इस वक्त ये डाउट है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूं, मुझे क्या करना है, बिकॉज टिल 10th many of you I feel are free birds. They are not mature enough. वो ये सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, and they always wait for their result, for their other temperaments, but they don't want to dive into themselves. अपने अंदर नहीं घुसते हैं, अपनी इच्छाओं को नहीं देखते हैं और अपने ड्रीम्स को नहीं संजोते हैं. So this is something which is very difficult for a person to turn over the doubts into faith. तो वो करना जरूरी है. तो आज I or anyone else in the world is not likely to tell you what to do. Everybody will be guiding, but you have to ask yourself, what is important for me? What is my dream? How can I pursue that dream? And which stream I have to get into to get the success and to get the pinnacle, to get the achievement where I want to go. So everything depends on your own decisions. I will try to guide you today to freshen up with the thoughts, what you are having in yourself and what I am feeling, that if you are taking this subject, you may have these kinds of doubt. So I think many FAQs, many questions will be solved and you won't be having any kind of doubt remaining with you at the end of the session. So first important thing, I must tell you that you are free to be yourself. You are the person who is always free to be yourself, which you feel that you are not. You are guided by the thoughts of someone else. You are guided by the society. You are guided by the peer group. I mean, it's not the guidance. It's a pressure which you carry forward. So that pressure has to be lessened down, which will create all the doubts, which will transform all the doubts into faith. So that you have to do. You will be doing it yourself only. What you want to become, what you want to do is the first and foremost thing for us to understand. Everyone should understand कि मुझे क्या करना है.
मेरे पेरेंट्स मुझे ये लेना चाहते हैं, ये लेने के लिए स्ट्रेस कर रहे हैं, या मेरे दोस्त मुझे ऐसा कहते हैं, या मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी ये सब्जेक्ट लूंगा. दिस इज नॉट द थिंग नाउ. किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि किस किस चीज की जरूरत हमें ऐसे मौके पर पड़ जाएगी और क्या हो जाएगा. आज ऐसा माहौल हो चुका है कि हम सेल्फ मेड पीपल बनते चले जा रहे हैं. तो सबको अपने अंदर झांकने का मौका दिया गया है और हम खुश हैं इस बात से कि हम पहचान पाए हमारे अंदर कौन से टैलेंट्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं. ईच एंड एवरी टीचर हु वाज टीचिंग यू इन द क्लासेस हैज ट्रांसफॉर्म्ड completely. They have come to online classes. They are doing a lot of things. They are doing a lot of labor, dear. बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स आपके लिए. एक बार आप टीचर्स को कुडोस चैट पे लिख के दीजिए, so that I would understand that you have wished them a huge round of applause and you understand that you are making the teachers do everything for you. I would like to see the chat box, please. And I wish that a teacher is doing a lot of things what you cannot even think it of. And this transformation is what? Teachers have never dreamt for it, have never thought of it. But teacher's job is to prepare herself like this, that all atrocities are to be taken care of. All challenges are to be taken care of. So teacher is a human being first, and then she teaches others. Because if you are not able to understand yourself, you will not be able to understand any other situation. So important thing is that one has to know what kind of strength and weaknesses I have myself. अपने अंदर क्या कमी है, क्या मेरी खासियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो हम सलाह देंगे. लेकिन आप किसी के कहने से वो सब्जेक्ट को चूज करें, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा. हमें नहीं, इवन यू विल ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर. यू विल फाइंड कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया. I'm not able to find it out. So first thing is that you have to be yourself. सबसे पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने सपनों को समझने की कोशिश करो, और सक्सेस की तरफ कैसे जाना है ये हम आपको जरूर बताएंगे, ये पेरेंट्स जरूर बताएंगे. और दोस्त तो हर तरह के होते हैं, ज्यादा अच्छे और ज्यादा बुरे भी. तो आपको समझना, ना टाइम वेस्ट मत करो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मत वेस्ट करो टाइम. आपका दोस्त आपके अंदर है, आपका भगवान आपके पास है. आप खुद डिसीजन लीजिए, खुद उस पर डिटर्मिन्ड रहिए, डॉन्टिंग रहिए, एंड ट्राई टू गेट इनटू दैट फोर्स. ओके, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइस. यू कैन बी अ डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर सेव्स लाइफ. यू कैन बी अ लॉयर बिकॉज लॉयर डिफेंड्स. And you can be a soldier because soldier protects us. Or just be yourself. Be yourself because you are a person that you have to be a person who touch everybody's life. एक अच्छा इंसान सभी को अच्छा लगता है. किसी की भी क्वालिटी को कैसे हम देखते हैं, उसने क्या सब्जेक्ट लिया है, वो किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ा है, नहीं. So having the qualities inside us is something which is beyond the reach of anyone else. So मैं क्या हूँ ये मुझे जानना बहुत जरूरी है. दूसरे मुझे क्यों बताएंगे कि आप साइंस में बहुत अच्छे हैं, आप साइंस ले लीजिए, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप कॉमर्स ले लीजिए. दिस इज नॉट द वे. ट्राई टू फाइंड आउट. आप कर सकते हैं अगर आप खुद चूज करते हैं अपना सब्जेक्ट. टू बिलीव मी, सक्सेस आपके हाथ में है क्योंकि आपने खुद ही चुना है वो सब्जेक्ट. लेकिन आप अभी बच्चे हो, आप इमेच्योर हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी की बातों को सुनना और समझना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट टीचर्स डू, दैट्स व्हाट एल्डर्स डू, दैट्स व्हाट पेरेंट्स डू. I would request all the parents not to pressurize any child for their stream selection. हमसे ज्यादा पेरेंट्स को पता होगा कि उनके बच्चे की क्या क्वालिटी है. वो उस क्वालिटी पे फोकस करके अगर उसको कुछ
हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो अच्छा लगेगा. मैनी मूवीज यू मस्ट हैव सीन जहां हम एंड में रिग्रेट करते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या हुआ, मैंने क्या किसके प्रेशर में आके क्या ले लिया. थ्री इडियट इज अ big example of that. So don't be that kind of idiot. You have to understand that the time lost has lost forever. Time will never come again. And this is the time, this is the threshold where you are standing with two minds, whether this or that. Many of you must be very very perfect in one selecting one of the things. आधे से ज्यादा बच्चे तो बहुत पहले से सोच चुके होंगे कि मुझे क्या करना है, और उन्होंने अपने सपनों को इस तरह से संजोया होगा कि आज उनके पोजीशन वैसी होगी कि वो उसमें सक्सेस ले सकें. तो उन बच्चों के लिए कोई चिंता नहीं है, उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है. लेकिन 50% ऐसे भी हैं जो यही सोचते रहते हैं कि देखा जाएगा. मस्त रहना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक हद तक. करियर की चॉइस मस्ती में नहीं लेना. मस्ती में उस करियर को निभा पाओ ऐसी चॉइस करना. तो चॉइस इज ऑलवेज, इट हैज टू बी योर्स. अब अपने आप को कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? सबसे पहली चीज, आपको क्या क्या करना होगा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए. इट्स वन ऑफ द थिंग वेयर यू विल फाइंड दैट यू शुड बी ऑलवेज सराउंडेड, always surround yourself with the people who will lift you up, जो आपको ऊपर ले जाते हैं, जो आपको बड़ा बनाते हैं आपकी खुद की नजरों में. ऐसे लोगों के साथ रहो. ऐसे ही दोस्त, ऐसे ही बड़े, ऐसे ही साथी, सब ऐसे लोग होने चाहिए कि जो वो आप चूज कर सकते हैं. किसी से बात करके ही पता चल जाता है कि कौन आपको ठीक सलाह दे रहा है या उसको भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है बस. तो प्लीज, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. और वी आर ऑल प्योर सोल्स. आप सब गंगा नदी की तरह पवित्र. और अगर किसी दोस्त ने ऐसी कोई सलाह दे दी और आप पॉन्ड में गिर गए, तो गंगा को वापस कैसे लाएंगे हम? तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी स्ट्रेंथ, सब कुछ खुद समझ सकते हैं. और आप इस लाइफ में जितना चाहें अपने आप से जो ले पाएंगे वो कोई और आपको नहीं दे पाएगा. सो प्लीज से आई एम ऑसम. मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ. मेरे से अच्छा कोई है या नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. बट आई एम ऑसम. मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ. मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू कि जिन टाइम में हम पढ़ते थे उस टाइम पे ये सब चीजें कुछ नहीं होती थी. लेकिन फिर भी टाइम सब कुछ सिखा देता है, लाइफ सब कुछ सिखा देती है. आप लोग अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी अपडेटेड है. यू पीपल ऑलवेज थिंक कि हमें तो पेरेंट की बात को समझना ही नहीं है. कभी कभी तो समझते भी नहीं है कि क्या जरूरत है पापा, आपको नहीं पता, मुझे यही करना है. अगर आपको कंफर्म है कि आपका ड्रीम आपकी एक्टिविटीज के साथ चल रहा है, जो आप करते हैं वो ड्रीम पूरा करने वाली एक्टिविटीज हैं, तो योर डैड एंड योर मॉम एंड योर एल्डर्स आर नॉट सिली पीपल. दे नो. दोनों तरह के प्रेशर की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं. मैं एंड में हमेशा ये बच्चों से कई बार बोलती हूँ और सुनती हूँ रिजल्ट डे पे. एंड मीन्स रिजल्ट डे फॉर मी. उस दिन बच्चे कई बार बोलते हैं मैं तो नहीं चाहता था साइंस लेना, लेकिन मुझे लेनी पड़ी, ऐसा हुआ वैसा हुआ. तो मुझे फील होता है, कोई बात नहीं. उस समय हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, मना भी करते हैं. लेकिन फिर भी बच्चों के पास कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें उनको लगता है कि मैं तो लेना नहीं चाहता था लेकिन मुझे लेना पड़ा. तो मैं वो चीज सुनना पसंद नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि जब आप किसी के कहने पे चलेंगे तो आप अपना तो सब कुछ खो देंगे, और फिर हर स्टेप किसी के कहने पे नहीं हो सकता. ना आप पेरेंट्स को इस तरह से डाल सकते हो. जब वो आपको कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं तो उनकी भी सुननी पड़ेगी, उनकी बात की भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपके पास एक कन्विंसिंग रीजन होना चाहिए ये बताने के लिए. लेट्स से एक one child is saying I'm very creative, I'm a budding poet, I'm a writer, I really want to do something in arts. Science is not my cup of tea. So maybe
the person has got a lot of good percentage and in good books of everyone. अब उसको या तो पेयर प्रेशर हो जाता है, लो ह्यूमैनिटीज लेंगे हम, ये क्या बात हुई, तो वो ऐसा सोचकर अगर लेने ना ले तो किसका नुकसान है, ये उसको सोचना है. और अगर पेरेंट्स ऐसे बच्चे को कहें 90% तुम्हारे आए हैं मार्क्स, इतने अच्छे नंबर आपके साइंस में मैथ्स में हैं, साइंस क्यों नहीं ले लेते, सो ये भी मिस डायरेक्शन है. जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके शौक जानते हैं, उनकी पॉजिटिविटीज जानते हैं, वो ऐसे गाइड नहीं करते हैं. लेकिन ये वही लोग कर पाते हैं जो अपने सपने अपने बच्चों के साथ बुनते हैं. वो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका, इसको बनाना है. So it is not good. पेरेंट्स अपनी चीजों को समझे और बच्चे अपनी चीजों को समझे. दोनों को समझना है कि हम इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे. आप चॉइस तो कर ही चुके हैं, आप तो क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप ये लीजिए या वो लीजिए. जब हम स्कूल में थे तो एक एक करके हम काउंसलिंग कर लेते थे, बट अब ऐसे टाइम पे हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है बेटा. तो हम चाहते हैं कि आप फिर इंट्रोस्पेक्ट करें आज और देखें कि मैंने जो स्ट्रीम ली है उसको मैं चला भी पाऊंगा कि नहीं, और ऐसा तो नहीं कि उस स्ट्रीम की वजह से कोई नुकसान हो जाएगा मुझे. तो ये सब चीजें आपको सोचनी है बेटा. पापा मम्मी, देखो जनरेशन गैप से घबराना नहीं है पेरेंट्स, वो हमेशा रहेगा. आपका अपने पेरेंट्स के साथ था, अब आपके बच्चों का आपके साथ होगा. वो गैप हमारी जिंदगी है, वो हमारे साथ चलेगा, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है. लेकिन कोशिश करनी है कि थोड़ा हम इनके जैसे बन जाएं और इन बच्चों को ये सिखाना है कि ये थोड़े हमारी वैल्यूज के साथ आगे बढ़ें. टेक्निकलिटीज आ जाना, टेक्नो सेवी हो जाना, बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाना, ऐसा सब करके आप अपना ही नुकसान करते हैं. आजकल सब खाली है ना, तो मुझे पता है सारा दिन आप क्या करते हैं. आपके पास क्लासेस के नाम पर या किसी भी कोई भी बहाना तो बहुत है, और फोन के बिना आप नहीं रह सकते. और फोन पे क्या क्या कर सकते हैं आप, वो हम सब हमें दिखता है, हमें समझ आती है, क्योंकि हम आपके साथ बड़े हो रहे हैं. आपके बड़े होने से पहले हम साथ साथ हम भी बड़े हो जाते हैं और हम वो एट्रोसिटीज, हम वो प्रॉब्लम्स को जांच लेते हैं कि क्या होने वाला है, आप अब क्या कर सकते हो. हर प्रॉब्लम की कीज पहले बन जाती हैं, मालूम है ना. तो आप लोग कैसे रूल्स को तोड़ते हो, कैसे वैल्यूज को तोड़ते हो, ये टीचर्स को समझ आ जाता है, और अच्छे पेरेंट्स को तो सबसे पहले समझ आता है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टीचर्स. तो कोशिश करके भी बेटा ऐसी चीजों में आप किसी को बेफूल नहीं कर रहे हैं. अगर हो भी गया गलती से कुछ, तो स्टॉप एवरीथिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, या जो भी आप सोच रहे हो कि हम लोग तो इस चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं तो विल डू दिस थिंग. आप ट्यूशंस और क्या क्या क्लासेस, किसके नाम पे क्या क्या करते हो, वो सब छोड़ दो. अब बी मैच्योर. एंड करियर डिसीजन इज ऑलवेज, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. यू नो, ये सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है. पहला क्वेश्चन है कि मुझे ह्यूमन बीइंग बनना है. कैसे बनूं मैं, कैसे मैं सबके दिल में रह सकूं, कैसे सब मुझे अच्छा समझ सकें. और इन सब चीजों के लिए एक छोटी छोटी चीजें नहीं होती हैं हमारे हाथ में, पूरी जिंदगी हमें सिखाती रहती है. और ये भी नहीं है कि आज की बातों से आपको समझ आ जाएगा एक अच्छा इंसान कैसे बनना है पहले, फिर करियर का डिसीजन लेना है. दैट्स वेरी ट्रू, सबने आपको ये बात बताई होगी, लेकिन फिर भी आपने उसको आजमाई नहीं है. आपने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या हुआ, नंबर तो आ ही जाएंगे. पहली बात तो करियर को नंबर से मत देखो. नंबर्स आर समथिंग एल्स एंड करियर इज समथिंग एल्स. करियर इज योर लाइफ. सारी लाइफ आप एक ही चीज के साथ बिताने वाले हैं. जो स्ट्रीम आपने ले ली है उसी स्ट्रीम के साथ आप चलने वाले हैं, और उसी स्ट्रीम के साथ आपको अपना लाइवलीहुड लेना है. जब तक आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उससे अपना लाइवलीहुड कैसे कमाएंगे बताइए. पैशन ही नहीं होगा. एंड व्हेन देयर इज नो पैशन, नथिंग कैन बी रिजॉयस्ड. मजा नहीं आएगा ना. पढ़ते तो जाओगे, ठीक है, 11th भी हो गई, 12th भी हो गई, इंजीनियर भी बन गए, अब क्या करें, अब क्या करें. सो बहुत सारी चीजें. अब बेटा ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो ना स्किल इंडिया, स्किल इंडिया क्या है. इट्स नॉट ओनली कि आपको एक ही स्किल चाहिए. इट्स समथिंग वेयर वी फील कि हम कुछ अलग करें. वी शुड थिंक
आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेटिव बने। और वो सब बनने के लिए माइंड को बहुत ज्यादा ड्रिल करना पड़ता है। जितना ज्यादा हम माइंड को चलाएंगे, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें, खुद को बहुत ऊंचा रखें हमेशा। सबसे पहली चीज इसके लिए आपको बताइए कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, देन अवेयरनेस अबाउट द न्यू ऑप्शंस, नए ऑप्शंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अब हैं। आपको मालूम है कि अब किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इंजीनियर्स की ज्यादा जरूरत है या मुझे क्रिएटिव लोगों की ज्यादा जरूरत है, मुझे मीन्स नेशन को किस चीज से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये आपको सोचना है। ओके, मेनी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने के अलावा आप सोचें तो सब कुछ और चीजें सोचें अपने इंटरेस्ट के साथ। अगर कुछ और नहीं है और आपने शुरू से कुछ सोच रखा है और उसको बना पाए हैं अब तक आपका रिजल्ट आपका साथ दे रहा है। आपके पेरेंट्स आपका साथ आगे भी दे पाएंगे उस चीज में, क्योंकि कुछ चीजें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पेन्स टेकिंग होती हैं, वो आपको वोकेशनली ट्रेनिंग नहीं दे पाती हैं, वो सब अकेडमिकल ट्रेनिंग के साथ चलती हैं। और प्लीज डोंट गो विद द ट्रेंड्स ऑफ द ट्यूशंस एंड ऑल अदर थिंग्स। आप ये मत सोचो कि आपने फिर ज्वाइन नहीं किया तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। नो, नॉट एट ऑल। जब आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, आपने खुद ये सपना देखा था, तो पूरा क्यों नहीं होगा? कौन रोकेगा उसे? कोई नहीं रोक सकता। काम आपने करना है, पेपर आपने देने हैं, फिर किस लिए इन सब चीजों के लिए घबराना। सो डोंट वरी। पेरेंट्स, आप भी बच्चों का पूरा साथ दें और उनसे पूछें कि उनको जरूरत है तो करें। ये नहीं कि बेटा अब तुमने साइंस ले लिया, अब तो तुम्हें ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी, तुम्हारे लिए मैंने 2 साल का पैकेज ले दिया है, अब पढ़ो। नो, इट्स नॉट गुड। एट टाइम्स यू विल फील कि अभी मैंने तो 10th और 11th अपार्ट। कभी मत सोचना, गलती से भी मत सोचना कि जो आप अकेडमिकली 10th तक थे वैसे 11th में रहोगे। नहीं, वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स। 90-80% वाला बच्चा 60% पे आकर एंड अप हो जाता है इन 11th स्टैंडर्ड। ये अलग बात है कि वो फिर मेहनत करके 80% से 12th कर लेता है, बट 11th इज ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्लास। सो बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो, अभी छुट्टियां भी हैं, बहुत आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। अच्छी अच्छी साइट्स देखो, ऑप्शंस को ढूंढो, सपना देखो। रोज नया भी देखोगे तो चलेगा, अभी वो आप चेंजेस में आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ आप नहीं कर सकते। नई चीजों की तलाश करो, कुछ स्टैंड आउट होने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू बी अवेयर ऑफ ऑल द न्यू ऑप्शंस। एंड नीड फॉर स्किल्स एंड इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट नाउअडेज। आज की डेट में आपको स्किल्स को होन करना है। आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है? हम इंजीनियर बनने के बाद भी एक इलेक्ट्रिशियन की वेट करते हैं कि वो आके हमारी लाइट ठीक करेगा। लुक एट इट, व्हाट इज इट? फिर क्या हुआ? हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम रिक्शे वाले से हिसाब करते हैं या सब्जी वाले से हिसाब करते हैं तो वो हमसे पहले हमें पैसे वापस कर देता है। हम सोच ही रहे होते हैं हमने इसको इतने पैसे दिए तो ये कितने वापस करेगा, वो हमसे पहले कर देता है। सो दैट्स व्हाट द लाइफ इज। लाइफ इज नॉट व्हाट यू फील टिल नाउ। अब मजा आएगा, लाइफ अब बनेगी, और बनाने से पहले आपको जो सोचना है वो आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी प्लानिंग है, इसलिए वो इम्पोर्टेंटली बहुत ही अच्छे और ठंडे दिमाग से करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया, चलेगा मैम, चलेगा, मैं कर लूंगा। देखो, छोटे छोटी चीजों में चैलेंजेस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई के साथ आप सोचे मेरे 40% भी आ गए, मैंने सोचा था पास तो हो ही जाऊंगा, हो गया। दिस इज नॉट द लाइफ। पास फेल ही लाइफ नहीं है। आपने उसको कितना एंजॉय किया, कितना पढ़ा, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले खुद को समझ लीजिए। खुद आप चाहेंगे कि मैं जो ले रहा हूं, मेरी अब ड्यूटी है, मैं इसे पूरा कर लूं। सो व्हेन यू लव समथिंग, यू वांट टू डू इट बाय दिस वे और दैट वे। मुझे मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी सबके सामने कि आप जिस चीज को प्यार करते हो, जिस इवेंट को प्यार करते हो, वो आप करके रहते हो, चाहे कैसे भी। पर पेरेंट्स, आप भी समझ जाइए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस और जा रहा है। दिस इज द राइट टाइम टू फाइंड आउट।
और उस तरह से उसका करियर डिसाइड करिए। करियर में प्लीज स्ट्रीम्स का कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझती हूँ कि आपने स्ट्रीम कोई भी ली हो, अगर आप उसे मजे से पढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और एटलीस्ट आप उसमें 60% ला पा रहे हैं, तभी मैं कहूंगी कि आपने इट्स अ राइट चॉइस बेबी, अदरवाइज इट इज नॉट अ राइट चॉइस। जस्ट getting 40% and getting into 11 and 12th is not a good game. तो इसीलिए परसेंटेज एक बार बन जाती है थोड़ी सी हम लोगों को ये देखने में कि आप क्या कर पाओगे। बट टीचर्स अगर आपको कोई सलाह देती हैं या बड़े कोई सलाह देते हैं तो उसे समझो, और अगर उस सलाह के अलग जाना चाहते हो तो कन्विंस करके दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं और पेरेंट्स ये समझ जाएं कि नहीं अब मैं इसको ये सब्जेक्ट लेने देता हूँ। Okay, so try to understand yourself and then try to find out, be aware the new options, the new skills, the new kind of criteria which are going on to adopt the skills. All such things you have to see, and how can you promote your own interest is much more important. अगर आपका इंटरेस्ट है एक ऑथर बनने का और आप साइंस ले लेते हैं, लुक एट चेतन भगत, सब कुछ करने के बाद भी वो मशहूर कैसे हुए? एक ऑथर बन के। तो ऐसा नहीं है, जो आपके अंदर है वो निकलेगा, आज नहीं तो कल आपको निकालना पड़ेगा। तो अच्छा है कि प्लान उस हिसाब से कर लो कि मुझे ये चीज करनी है, तो मैं फिर बेकार में इन सब चीजों के लिए न जाऊं। आई एम अ गुड आर्टिस्ट, मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मुझे एग्जीबिशंस लगानी है, मेरी विश है कि मैं बड़े होके ये काम करूं, तो वो आप उसमें भी कर सकते हैं। आपको बनना ही लॉयर है तो साइंस लेने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी, वो सब हम एक दो दिन में नहीं बता सकते आपको, वो आपका इंटरेस्ट आप ही जानते हैं। यहाँ आज हम 130 लोग इकट्ठे हैं, 130 लोग थोड़ी ना बताएंगे कैसे हम एक दूसरे के साथ रीच आउट हो सकेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप से पहले जस्टिस कर ले और फिर आगे बढ़े। फिर कोई आपको रोक भी नहीं सकता। क्यों रोकता है कोई आपको? जब आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हो। जब अच्छा रिजल्ट दोगे तो क्यों रोकेगा कोई? और क्या आपको अच्छा रिजल्ट पसंद नहीं है? बस मैं इतना कहूंगी कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट एटलीस्ट 60% होना चाहिए। वही चीज करना जिसमें आपके ड्रीम ही 60% से शुरू होता है। 40 पे आके एंड नहीं कर देना कि पास तो हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं। नो, डोंट टेक इट लाइटली। इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ। नो वन एल्स हैज टू डिसाइड दैट कैसे करना है और क्या करना है। तो प्लीज, ये लॉकडाउन पीरियड हमें नहीं पता कब तक हम इस तरह से करेंगे। ऑल्दो 11th क्लास शुरू ही जुलाई में होती है, बट स्टिल मैं चाहूंगी कि आप लोगों को मौका मिला है कि अपने करियर पे बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के काम करें। सो यू कैन डू दैट, इट्स वेरी इजी फॉर यू। इट इज ओनली डिफिकल्ट इफ यू फील दैट एक बार मैं सोच के देखता हूँ मुझे करना क्या है। मैंने कॉमर्स ले लिया है, मुझे करना क्या है? मैंने ह्यूमैनिटीज नहीं ली और मैं ऑथर बनना चाहता हूँ, या मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज। आप पायलट बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सारी चीजों के पहले आप एलिजिबिलिटीज देखिए कि क्या सब्जेक्ट जरूरी है इसके लिए, और चॉइस आपके हाथ में है। चॉइस आपकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होती है क्योंकि आपको स्कूल की चॉइस के हिसाब से चलना है, जो स्कूल में है वो आपको पता ही है, तो फिर इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मैं जितना सोचूं, जितना मुझे ग्रिल करना है इस चीज के लिए, उतना रिजल्ट भी मुझे ही मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं होना है किसी सिचुएशन के लिए। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आपने इतना स्टडीज कर लिया है, इतना उस पर रिसर्च कर ली है इस चीज पे कि आप एक कन्विंसिंग तरीके से बात कर सकते हैं। तो वो चीज हमें चाहिए। हमें रिएक्शन नहीं चाहिए कि आप उल्टा सीधा कुछ बिहेव करें और हमें लगे कि चलो ठीक है आपने लिया तो अब आप लो भुगतो। फिर दूसरों से बेटा ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, दूसरे कभी ब्लेस नहीं कर सकते हैं। दूसरे भी यही चाहते हैं कि ठीक है हमने तो आपको मना किया था, आप नहीं माने, अब देखो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी चीजें मत हो, इसलिए आपको ही थोड़ा सा कोशिश और अच्छी करनी पड़ेगी। और अब हम
जब क्लासेस चलेंगी तो आपको धीरे धीरे अगर पता चलता है इस वीक में भी कि यस साइंस इज डिफिकल्ट, बिकॉज 11th में साइंस का ही रिजल्ट सबसे ज्यादा पुअर हो जाता है। रीजन बीइंग कि इतनी डिटेलिंग, इतनी ज्यादा लेबर, इतना पढ़ाई, ये सब करने, इतनी मेहनत करने की आपकी अभी कोई रूटीन ही नहीं बना होता 10th तक। आप बहुत लेजरली लेते हो चीजों को। तो वो जैसे ही जब आपको 6 आवर्स अ डे आपको पढ़ना ही है साइंस लेने के बाद, क्योंकि वो सब्जेक्ट की डिमांड है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते। तो कोशिश करना कि आप इस वीक में भी एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, इफ एवरीथिंग इज फाइन एनफ, try to put questions to the teacher while they are teaching you about the future also. एक बार सोच लेना कि आगे भी चलकर क्या होने वाला है वो उनको पता हो, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो what you have to do, you have to dream big, you have to live with your dreams, and a goal without a plan is only a wish. गोल आपने रख लिया, प्लानिंग की नहीं, तो क्या होगा? वो तो विश होगा। आई विश आई वुड हैव बीन दिस थिंग, आई विश मैं ये होता। सो वो विश ही रह जाएगी, और आपके सामने फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि विश होते हुए आप उसको गोल से तो डेविएट हो जाएंगे और वो विश बनकर रह जाएगी। सो कल्टिवेट योर इमेजिनेशन एंड नर्चर योर गोल। इमेजिनेशन को बढ़ाओ, imagination on the right side in a positive way. You have to be very, very clear about these things. If you are not positive, your directions cannot be right. So both the things go parallel, positivity and the road you have taken. It has to be nurtured. Your goal has to be nurtured by you. So always say, either I shall find a way or I will make one. What does it mean? या तो मैं मुझे अपना गोल अचीव करना है, मुझे अपना गोल नर्चर करना है, और उसके साथ अगर मैं कोई रास्ता बना पाया तो जरूर बनाऊंगा, मिल गया अगर मुझे तो आई शैल फाइंड अ वे और आई शैल मेक वन, या मैं अपना ही कोई रास्ता बनाऊंगा और इस चीज से उतर जाऊंगा, बिकॉज इट्स माई पैशन। नर्चरिंग योर गोल मीन्स दिस। ठीक है, अपने दिल की आवाज को सुनकर किया गया कर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अपने दिल की आवाज सुने बिना कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ओके, आई कैन सी पीपल राइटिंग इन द चैट बॉक्स दैट दे हैव अंडरस्टूड। आई फील if you wish to put up any question, you pen down yourself and I will give you time at the end and you can ask that also. Now I want you to become very happy person. Okay, so what are the qualities of a happy person? कैसे पता लगाते हो कि कोई बहुत खुश है? They don't show off. First thing is they don't show off. They are simple people. जो simple लोग होंगे वही हैप्पी होंगे। अब तो आपको पता चल रहा होगा मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, ये सब चीजें क्या हो रहा है। सब जगह आपको यही सोचना है कि अगर मैं शोबज में, दिखावे में ये सब काम करता रहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर करता रहा, तो मेरा अपना पार्टिसिपेशन नल सेट की तरह होगा जो मुझे कोई फायदा नहीं देगा। ओके, सेकेंड थिंग इज, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो निशानी होती है एक खुशनुमा इंसान की, दे टॉक लेस, कम बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से वो उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वो एनर्जी को अपनी हैप्पीनेस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, बहुत ऑब्जर्विंग होते हैं और बहुत मस्त रहते हैं, मजे में रहते हैं। तो ये सब चीजें कब आती हैं? जब हमें लगता है कि हम अपना पैशन अपने साथ ही रखा है, हमने पैशन कहीं और नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, मैं कहीं और हूँ, ऐसा नहीं है। सो आई एम वेरी मच विद माई पैशन, विद माई इंटरेस्ट, एंड आई एम कंप्लीटिंग माई जॉब विद अ डॉन्टिंग assurance that I can do it. I can do it. ये चीज रहनी चाहिए हमेशा। उसी में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसी में आपको मजा आएगा और वो काम करते हुए आपको वो भारी नहीं लगेगा काम।
आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि वो चीज आप जो कर रहे हो वो किसी के कहने पे कर रहे हो. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस, आई नीड हैप्पी चिल्ड्रन. जितना ज्यादा आप खुश होंगे ना, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा. आई एम बिकमिंग मीन इन इट. आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पे कोई काम आपको करना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए. और दूसरी तरफ अगर आप किसी के कहने पर कर रहे हो और आप अंदर से नहीं चाहते हो और आपके पास पावर्स नहीं है कि आप उसे मना कर सको, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. वो पावर्स ही हैप्पीनेस है. वो बनाना अपने आप को आसान तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. और दूसरी क्वालिटी एक और, हैप्पी पीपल ऑलवेज लर्न. उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है. वो कैसे आता है कॉन्फिडेंस? हैप्पीनेस के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे है? देखो, आप कॉन्फिडेंस आएगा तो हैप्पी होंगे. तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी. और नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ पढ़ के ही बढ़ाएंगे. नॉलेज लाइफ से भी बढ़ती है. जो वन मिस्टेक यू हैव डन, डोंट रिपीट इट. आपको नॉलेज हो गई, यू आर अवेयर कि ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है, इससे मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी. तो आप अपने आप लर्न कर रहे हो. लर्न डेली, एवरी मोमेंट इज टीचिंग यू समथिंग और द अदर. आज की बातों को अगर आप सुने, थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचें, तो आप सोचेंगे आज से ही आपने बहुत कुछ सीख लिया. तो ऐसे तो बहुत मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में जिससे आप सीखते हैं. अपने से छोटों से सीखते हैं, अपने से बड़ों से सीखते हैं और अपने साथियों से सीखते हैं. पर वही लोग सीख पाते हैं जो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं. जब आप एक जस्टिफाई कर चुके हैं कि वो साथी जो आपको ऊपर नहीं खींच रहा, वो क्या करेगा, वो आपका, उसको आपका अच्छा होना नहीं अच्छा लग रहा, तो आपको सेंस इतना हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप भागे चले जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि अब तो मेरा दोस्त है वो. ऐसा नहीं है. दोस्ती सिर्फ खुद से करो, जियो और हंसो और आगे बढ़ो, बस. और कुछ नहीं चाहिए. दोस्त बहुत अच्छे हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा आपका, लेकिन लोगों को चुनना, दोस्तों को चुनना आपको आएगा ही तब जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा दिस इज राइट फॉर मी और नॉट. चोरी करके नहीं खाओगे फिर कोई चीज, समझ रहे हो ना? जब शुगर हो जाती है तो रोशन होता बजाज, क्या होता है? फिर हम चोरी कर करके मीठा खाते हैं. जब हमें मना हो जाती है तब हम चोरी करके खाते हैं. तो फिर ऐसी चीज ना हमें करनी पड़े, वो बिंदास करना पड़े. जो करें वो दिल खोल के करें, खुश होकर करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें. हमें छुपाना ना पड़े, सच के साथ रहें. ओके, सो डोंट शो ऑफ, टॉक लेस, लर्न डेली एंड हेल्प अदर्स. हेल्प अदर्स मीन्स थोड़ा सा भी काइंडनेस शो हम कर देते हैं ना. अब आजकल तो बहुत लोगों ने थोड़ा सा भी किसी को दिया तो सेटिस्फैक्शन खुद को होती है, और पैट करना भी चाहिए. वो उसका मजा ही कुछ और होता है. जब हम किसी को कुछ काइंडनेस शो करते हैं, सिर्फ देने का मतलब नहीं है, किसी की हेल्प कर देना, काइंड हो जाना. जो बच्चे किसी के साथ भी काइंड होते हैं, वो बच्चे बहुत खुश होते हैं अंदर से. वो शो नहीं करते क्योंकि उनको शो नहीं करना है कि मैंने काइंडनेस की है, लेकिन खुश होना है. सो दैट्स व्हाट दिस हैप्पीनेस इज. जादू है ये, मैजिक है. और इस हैप्पीनेस के साथ ही आगे जिंदगी में अलग तरीके का अंदाज है. और जब पेरेंट ये चीज समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे खुश देखना है और कुछ नहीं मुझे उससे चाहिए, एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट मत करो, बस दैट्स इट. और आगे चल के आप धीरे धीरे उसके साथ एंजॉय करो. अब एंजॉय कैसे करते हैं? हैप्पीनेस की एक निशानी है, यू हैव टू लाफ मोर. बहुत हंसना पड़ेगा. जब हंसोगे तो हैप्पीनेस दिखेगी. और वो हंसी की चीज क्या? दोस्तों के साथ उल्टी सीधी बातें करके गपशप में सब. नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू इग्नोर दैट बुलशिट. जो गलत बातें होती हैं, जिस बातों में आपको पता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, उन बातों पे आप हंसे, उन बातों को फटाफट टाइप करे, मोबाइल उठाया और लिख दिया. आपने तो चैट कर दी, लेकिन उस चैट में जो आपने लिखा उसने किसी की लाइफ में कितना तंग कर दिया. ये सोचने की बातें होती हैं. तो इन सब चीजों को आप ही जान सकते हो. आप जानते हो ये गलत है, फिर भी करते हो क्योंकि आप उसमें बहना चाहते हो. Who is the commander? Who is the commander of your own life?
कौन उसे चला रहा है? अगर किसी और ने चलानी है तो फिर उसके हिसाब से आप चलोगे ना। जब आपने अपनी लाइफ खुद चलानी है तो फिर दूसरे का क्यों आपको सहारा चाहिए? आप एडुकेटेड हो, आप एडल्ट हो, अपने आप को मैच्योर कहते हो, तो काम करना शुरू करो खुद ही। दैट्स इट। सो लाफ इज ऑलवेज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, बट विद अ गुड सेंस, लाफिंग फ्रॉम इनसाइड। आपके ऊपर, आपके फेस पे जरा सी स्माइल भी बता देती है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं। So this is what happiness is. Ignoring the bullshit and laughing with positivity. You will live longer. You will live stronger, stronger from inside with the confidence, and you always feel bright from inside. जो जिसके चेहरे पे तेज होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है। उसके अंदर की खुशी होती है, चीयरफुलनेस होती है उसके अंदर, वो दिखती है। अब 11th में आ जाना, सिर पकड़ के बैठ जाना कि अब मैं क्या लूं, क्या करूं, मैं तो बड़ा हो गया, मेरे को मत हाथ लगाओ, मेरे को कोई और काम मत दो, मैं तो पढ़ूंगा, मेरी पढ़ाई है, ये सब बाहर के स्ट्रेस है। इसको कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ये ऑटोमेटिकली होंगे जब आप एक हैप्पी सोल बन जाएंगे। तो जब आप खुश हैं तो फिर कुछ नहीं चाहिए। यस, इन सब बातों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? सी, डिस्कशंस आर ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट्स, because argument is to find who is right and discussions are to find what is right. तो आपकी अगर दोस्तों से हो तो भी डिस्कशन हो, अगर साथियों से हो, अपने छोटे बच्चे भाई बहनों से हो तो भी डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट नहीं हो। और पेरेंट्स से हो तो बिल्कुल सोच के रखो कि वो डिस्कशन होनी चाहिए, और हेल्दी डिस्कशन। इवन पेरेंट्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड, बच्चों को आर्ग्यू करने का चांस मत दें और खुद भी उनके सामने आर्ग्यू नहीं करें, सो दैट दोनों तरफ से ये बात हो जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना है। डिस्कशन करके आप नई चीजों को ढूंढ सकते हो, नए आंसर पर आ सकते हो, और मिलेगा आपको वही जो राइट होगा। लेकिन आर्ग्यू करने से आप जीतोगे नहीं, क्योंकि आप दूसरे को जीतने नहीं दोगे और अपनी एनर्जी को खराब कर दोगे, और दूसरा आपको जीतने नहीं देगा। तो दोनों ही एक दूसरे को नीचे करते रहेंगे। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो। अपने आप को कन्विंसिंग बनाओ और कोशिश करो कि आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो। नाउ आई मस्ट टेल यू टू पेन डाउन इन योर हार्ट और समवेयर, एक छोटा सा कोट है, व्हाट इज पास्ट? Past is a waste paper. Okay? Present is a newspaper. And future is a question paper. So, read and write carefully. Otherwise, life will be a tissue paper. So, be careful. आप past की problems को लेकर, past पुराने दोस्तों को लेकर अगर आगे चलोगे तो अब खत्म कहानी। आप इन चक्रों में अपने करियर को मत डिसाइड करो। प्रेजेंट इज द न्यूज़पेपर मींस यू हैव टू बी अवेयर, क्या चल रहा है दुनिया में, चाहिए क्या मुझे, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या मैच करना है। दैट इज व्हाट द न्यूज़पेपर इज। एंड फ्यूचर इज द क्वेश्चन पेपर। वो तो आपको पता नहीं है कौन सा स्ट्रगल आ जाएगी सामने, क्या हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, और इसी कोशिश के साथ आप आगे बढ़ते रहो। और बढ़ते बढ़ते आपको ये भी सोचना है कि अगर मैंने किसी तरह ये चीज विन ओवर कर ली तो हु विल बी द विनर? नो वन एल्स, आप खुद। एक छोटा सा और एक आपको मैं बात बता दूं, दैट देयर इज अ वर्ड स्पाइस। स्पाइस क्या होता है? कैन यू राइट इट ऑन द चैट बॉक्स? कोई भी एक लिख कर दिखाए बच्चा। स्पाइस किसे कहते हैं? SPICE। What is spice? Spice, masale. Do you agree Yes. Do you agree that spice makes the things delicious? Okay, तो आपको सिर्फ spice word को ही याद रखना है, और उस spice word को मैं आज आपको याद कराना चाहती हूँ डिफरेंट तरीके से। You can note it down somewhere. First letter S says skills. That is soft and hot both. दोनों तरह के स्किल्स। सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं मालूम है? अगर आप
किसी तरह से कहीं आपको जॉब भी मिल गई. आई कैन शेयर वन एग्जाम्पल विद यू. आई हैव सीन where one of the exhibition was going on, and a very renowned company has kept one MBA person and one a very normal person, not very educated, but master of soft skills. So company's promotion is marketing. Company wants somebody who has soft skill. So 3 days exhibition ran off, and the owner was observing it, and at the end of the exhibition he found that MBA was a null set for him. MBA person has done nothing for him, but the person who was not very educated but mastered in soft skills was being appointed as that leader. Look at it. लोग इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, और बाद में इन चीजों को आप नई स्किल्स को कभी भी होन नहीं कर सकते हैं. उसको जीने के लिए, स्किल्स को समझने के लिए आपके पास यही 2-3 साल होते हैं, जिन इन 2-3 सालों में आप कर सकते हो. अपने स्किल्स को क्या करोगे? नर्चर करोगे. हार्ड स्किल भी, सॉफ्ट स्किल भी. स्किल इज द फर्स्ट वर्ड फॉर स्पाइस, एंड द P word is what? P is persona, personality, which is very, very important, which hardly gives any setback to a person who is, see, persona means full of positivity also. सिर्फ एक शो ऑफ वाली पर्सनालिटी बना दोगे तो उसको persona नहीं कहेंगे. Okay, so you have to take care to bring up your skills, to have a good personality, and then I is interest, passion, your own interest. किस चीज में इंटरेस्ट है? If you need to get into this field, and what are the requirements of this field which are making you interested in getting into it, तभी जाओ. Okay, so next is C. C is character. Character means, बताने की जरूरत नहीं है, अभी सुबह से मैं यही बता रही हूँ आपको. My speech started with character and it will end with character only, because I feel if you are a good human being, you can do wonders. Whatever the task is being given to you, I can do is the mantra for you, and you will go on, and success is always in your lap. Okay, and E word is left now. What is E? Which is very, very important nowadays. This is emotional intelligence, which is the master of all intelligence, all kinds of aptitude, all kinds of intelligence coming into emotional, coming in the head is the emotional intelligence. Because emotional intelligence will make you a good leader. It will make you a good person as a whole. It will make you a perceiving person. It will make you patient. It will make you intelligent, and it will make you to gel with the team, to work with the team. All such things will help you out when you are emotionally sound. And emotionally sound means to become confident. वो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ. Spice is the key for the career counseling. कोई भी करियर अपना डिसाइड करने से पहले स्पाइस को याद रखे. बिना स्पाइस से उसका करियर अच्छा नहीं बनेगा. आप बिना सॉल्ट के चीज खाएंगे तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा. बिना मसालों के कोई भी चीज का स्वाद नहीं रहता. तो स्वाद डालना है, उसमें मजा डालना है, तो वो मजा स्पाइस क्या है? स्किल्स, पर्सोना, इंटरेस्ट, कैरेक्टर एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. दिस इज व्हाट अ करियर डिमांड्स. वो कैसा भी हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, या वो एक पेंटर हो, या कारपेंटर हो, एनीथिंग. Spice is important. Is that clear to all of you? Now I think I am off and taking your permission to get into with the questions, whatever you want to do. And if I have touched anybody personally, or somebody must have felt it, I'm sorry of that. But I feel that these kinds of things will go on, and it will create a big family of ours in a better way. So I would wish you all the best for your results, and wish you to see you to the school in a better way, in a positive way. And 60%
is the base of all the careers, and everywhere, wherever you feel that you can do wonders, this is you only, no one else. Okay, तो आप लोग कोशिश करो कि आप एक बहुत अच्छा इंसान बनो, और उसके बाद जो चॉइसेस आपने ली हैं वो आपकी अपनी है, और अपनी है इसलिए हमसे प्यार है इसलिए सक्सेस पर हम पहुंचेंगे. थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, सी यू अगेन.